A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12th accountancy. You know very well in the last video we discussed a very important numerical problem, that is a oversubscription and forfeiture of share. Let's we take one more example to understand this concept very easily, that is a oversubscription and forfeiture of share. You know very well, in the last video we discussed a very important practical problem which are related to the oversubscription. Thereafter we calculate the area amount on allotment with the help of applied share and allotted share, and thereafter we forfeit the share. Thereafter we issued the part of the forfeited share, and at last we can easily find the amount transferred to capital reserve account when company reissued part of the forfeited share. So now we will move to the very important practical problem related to the same topic, that is a oversubscription and forfeiture of share. So let us start today's video. So the next question which you can see in this on your screen as an image, that is HOTS question. What is the full form of HOTS question? Higher order thinking skill question. That is the illustration number 35. Let's firstly we dictate the question. Bharat Tyres Limited invited application for 1 lakh equity share of ₹10 each at a premium of 4 per share. यानी भारत कंपनी ने 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किए 10 रुपए के और प्रीमियम था उस पे 4. द टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर इज 14. द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज. अमाउंट इस तरह से मांगे गए ऑन एप्लीकेशन 6 इंक्लूडिंग प्रीमियम 2, on allotment 6 including premium 2, and on the balance on first and final call. It means 6 rupees application पे जिसमें 2 रुपए प्रीमियम है, allotment पे भी 6 रुपीज जिसमें 2 रुपए प्रीमियम है, as well as first and final call जितना बैलेंस बचा. Applicants for 1,50,000 share were received. Allotment was made to the all applicants on pro rata basis. याद रखिएगा एप्लीकेशन जो मिला वो 1,50,000 शेयर के लिए मिला और हमने अलॉटमेंट कैसे किया? 1 लाख शेयर्स प्रोवाइड किए विद द हेल्प ऑफ प्रो राटा बेसिस. एंड सुबोध टू whom 200 शेयर वर अलॉटेड फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी. सुबोध जो था जिसने 200 शेयर अलॉट हुआ था, प्लीज नोट डाउन, सुबोध जिसे 200 शेयर अलॉट किया गया था वो फेल कर गया अलॉटमेंट एंड कॉल मनी. विक्रम टू whom 100 शेयर वर अलॉटेड फेल टू पे द कॉल मनी. उसमें से विक्रम जो था उसने सिर्फ एरियर के अलॉट कॉल्स थे. देयर शेयर्स वेयर फॉरफिटेड, दोनों के शेयर फॉरफिट कर लिए गए एंड आफ्टरवर्ड्स रीइश्यूड एट द रेट ऑफ 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री. तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा प्रीवियस क्वेश्चन से, वो इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन जो है in this question share are issued at premium, but in the last question you can see that share issued at par. तो पहला डिफरेंस क्लियर हुआ प्रीवियस क्वेश्चन से. दूसरा ये डिफरेंस है कि इन दिस क्वेश्चन ऑल द अमाउंट्स which are received excess on application will be adjusted with the allotment. यानी जितना पैसा आपको अलॉटमेंट एप्लीकेशन पे एक्सेस मिला है वो सब का सब पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ है, कोई पैसा रिटर्न नहीं हुआ है. इट मींस कंपनी ने 1,50,000 शेयर होल्डर्स को 1 लाख शेयर प्रोवाइड किया है जिसमें से 50,000 जो एक्सेस शेयर है उसके पैसे को अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया गया. दूसरी बात क्लियर हो. तीसरी बात ये कि सुबोध जिसके पास 200 शेयर था वो फेल कर गया था अलॉटमेंट और कॉल, यानी अलॉटमेंट नहीं दिया इसका मतलब प्रीमियम नहीं दिया. दैट क्लियर. सो ये सिचुएशन फॉर फ्यूचर में भी आपको सोचना पड़ेगा. एंड विक्रम जिसने 100 शेयर मिला था वो फेल कर गया था कॉल मनी, यानी इसने प्रीमियम दे दिया था. यानी दोनों का फॉर फ्यूचर अलग तरीके का है. सुबोध का व्हेन वी फॉरफीट द शेयर ऑफ सुबोध, so in this situation the premium amount has not been received, but when we forfeit the share of Vikram the premium amount has been received. So दोनों की फॉरफीचर अलग तरीके की होगी, दोनों का रेशियो आप एक साथ कर सकते हो और उसके बाद कैपिटल रिजर्व में कितनी अमाउंट जाएगी इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे. बट इसमें हम लोगों ने पूरा शेयर रेशियो कर दिया है. इसमें नई चीज ये है कि इसमें एरियर एक शेयर होल्डर नहीं कर रहा है, 2 शेयर होल्डर कर रहा है और दोनों अलग अलग तरह से
फॉर एरियर कर रहे हैं। एक बंदा जो सुबोध है उसने अलॉटमेंट भी नहीं दिया है, कॉल भी नहीं दिया है, और दूसरा बंदा जिसका नाम विक्रम है उसने सिर्फ कॉल नहीं दिया है। सो प्लीज listen carefully and watch carefully this question. So let me start the solution of this question without creating any delay. So please open your copy and note all the important points related to this question. So according to the question you can see that company ने 1 lakh shares issue किए, 1 lakh equity share at the rate of 10 each. Okay, and at a premium of 4 per share, जिसमें 4 rupees क्या था, प्रीमियम था. So the total value of the share is 14. Is that clear? And amount कैसे मांगा गया था, एप्लीकेशन पे 6, एप्लीकेशन पे 6 रुपीज था, जिसमें 2 रुपीज प्रीमियम का इंक्लूड था. सो यू नो वेरी वेल 2 रुपीज प्रीमियम तो 4 रुपीज शेयर का होगा. ओके, नेक्स्ट वन ऑन अलॉटमेंट. अलॉटमेंट पे कितना पैसा था, ऑन अलॉटमेंट the value will be 6 including premium 2, so 2 रुपए premium plus 4 rupees share. So you can see that 2 rupees premium called on application and 2 rupees premium called on allotment. So the total premium will be 4, यानी total premium मांग लिया गया. ओके, एंड बाकी जो बचा कॉल्स पे, कॉल्स पे कितना डिमांड किया, बैलेंस, बैलेंस कितना बचा, टोटल वैल्यू थी 14, 6 plus 6 12, बैलेंस कितना बचा 2 रुपीज. इसमें कोई प्रीमियम नहीं. ऑल द मनी will be received related to the, yes, will be related to the share. Okay, so this is the rough information. Next one, applicant for 1,50,000 were received. हमें एप्लीकेशन कितने के लिए मिला, अप्लाइड हुआ 1,50,000. इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से बताता हूँ. अप्लाइड फॉर 1,50,000 बट अलॉटेड कितना हुआ था, दैट इज 1 लाख. कंपनी कितना शेयर अलॉट कर सकती है, ओनली 1 लाख. ठीक, और कंपनी ने क्या किया, सारे शेयर्स होल्डर को सारा पैसा दे दिया, मतलब सारा शेयर दे दिया, सॉरी, यानी जिन्होंने 1,50,000 शेयर मांगा उनको कैसे प्रोवाइड किया गया, प्रोराटा, यानी कि 1,50,000 वालों को पूरा कितना दिया गया, 1 लाख. यानी कोई भी फुली अलॉटमेंट, कोई भी नील अलॉटमेंट नहीं है. इन दिस केस कंपनी मेक अलॉटमेंट थ्रू द प्रोराटा, यानी कंपनी ने 1,50,000 शेयर होल्डर्स को पूरा 1 लाख शेयर प्रोवाइड किया है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू कैन सी दैट एप्लीकेशन फॉर 1,50,000 शेयर वे रिसीव्ड, अलॉटमेंट वाज मेड टू द ऑल एप्लीकेंट ऑन प्रोराटा बेसिस. सबको प्रोराटा पे दे दिया. उसके बाद हमारा स्टेप क्या होता है, एक्सेस निकालना. एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना होगा, द एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज 50,000 multiplied by 6, that is 3 lakh. And you know very well ये एप्लीकेशन मनी किसके साथ एडजस्ट हो जाएगी, इट विल बी एडजस्टेड टू द adjusted with allotment. Yes sir, क्लियर हुआ, यहां तक बात क्लियर हो गई. यस सर, ये बात क्लियर हो गई कि इसमें जो 50,000 शेयर एक्सेस है, 6 रुपीज है एप्लीकेशन पे, द टोटल वैल्यू 3 लाख रुपीज एडजस्टेड विद अलॉटमेंट, यानी पूरा 3 लाख रुपीज किससे एडजस्ट हो जाएगा, विद द अलॉटमेंट. ये बात समझ में आ गई होगी मुझे लगता है. अब मैं आगे की बात करता हूं. मैं पूरी वर्किंग नोट पहले मैं एक साथ कर देता हूं, फिर इसके सॉल्यूशन पे मैं मूव करता हूं. नेक्स्ट टर्म, सुबोध टू whom 200 शेयर अलॉटेड फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी. हम पहले बात करते हैं सुबोध की. ओके, सुबोध ने क्या किया, सुबोध जिसके पास कितने शेयर थे, हु हैव अ 200 शेयर अलॉटेड, उसके पास 200 शेयर अलॉटेड थे. उसने एरियर कहां किया है, उसने एरियर किया है अलॉटमेंट पे, उसने एरियर किया है कॉल्स पे. ओके, यस सर, यहां तक क्लियर है. यानी सुबोध जिसके पास 200 शेयर अलॉटेड थे, उसने अलॉटमेंट और कॉल पे पैसा एरियर कर दिया है. सो नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट द एरियर अमाउंट. हमें ये पता करना जरूरी होगा कि एरियर कितना होगा, बट एरियर कैसे फाइंड आउट करोगे, इट इज अ वेरी टफ टास्क.
नो सर, इट इज अ वेरी इजी टास्क. Why? Because of you know very well, सुबोध ने, चाहे सुबोध हो या इस कंपनी का कोई भी शेयर होल्डर हो, सबका पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट है. कैसे सर? यू नो वेरी वेल, कंपनी ने प्रोराटा किया है. कंपनी ने प्रोराटा किया है, सुबोध हो चाहे विक्रम हो, सबको कंपनी ने पूरा शेयर नहीं दिया है. आप देखो, सुबोध भी इसी कैटेगरी में आएगा, विक्रम भी होगा इसी कैटेगरी में आएगा. यू नो वेरी वेल, सुबोध हो चाहे विक्रम हो, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन सारे शेयर होल्डर का पैसा एडजस्ट है अलॉटमेंट पे. जैसे लास्ट क्वेश्चन में याद होगा आपको कि प्रोराटा अलॉटमेंट था और उसमें एक बंदे ने एरियर किया था, तो अलॉटमेंट पे हम लोग एरियर निकाले थे क्योंकि उस बंदे का भी अलॉटमेंट पे एक्सेस मनी था. वैसे सुबोध ने अगर 200 शेयर अलॉट किया होगा, यू नो वेरी वेल, अगर सुबोध ने को कितने शेयर अलॉट किए गए 200, तो उसने कुछ तो अप्लाई किया होगा. अप्लाई ज्यादा किया होगा कि कम किया होगा सर? अप्लाइड ज्यादा किया होगा. कैसे ज्यादा किया होगा? बिकॉज ऑफ यू नो वेरी वेल, 1,50,000 शेयर पे कितना शेयर अलॉट होता है? 1 लाख. तो 200 शेयर पे कितना होगा? यू कैन फाइंड दैट. कितना शेयर उसने अप्लाई किया होगा? द अप्लाई शेयर बाय द सुबोध इज 300 शेयर. यानी सुबोध ने 300 शेयर मांगा होगा, तब जाके उसे 200 शेयर मिला होगा. इट मींस अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वी कैन सी दैट सुबोध अलॉटेड for 200 share when he applied for 300 share. अगर उसने 300 शेयर मांगा होगा तब जाकर उसे 200 शेयर मिला होगा. इज दैट क्लियर? क्योंकि ये 200 शेयर इसी का पार्ट होगा और जिस बंदे ने 200 शेयर मांगा होगा, मिला होगा, उसने कुछ ना कुछ ज्यादा मांगा होगा. बेसिकली आपको ये समझना है, इन केस ऑफ द प्रोराटा अलॉटमेंट, आप जितना शेयर डिमांड करते हो आपको उतना शेयर नहीं मिलता. जैसे आप यहां देख लो, टोटल कंपनी ने के पास एप्लीकेशन कितने आए? 1,50,000. उसमें कंपनी ने अलॉट कितना किया? 1 लाख. आप कह रहा है कि एक सुबोध था जिसको 200 शेयर मिला था, इसी में से 200 शेयर मिला था, तो उसने अप्लाइड कितना किया होगा? 300 शेयर. अगर उसने अप्लाइड किया होगा 300 शेयर, तब जाकर उससे 200 शेयर मिला होगा. और उसका एक्सेस कितना बन रहा है? आप खुद देख लो, उसका एक्सेस बन रहा है 100 शेयर. यानी अगर हम अलॉटमेंट पे उसका एक्सेस निकालें, किसका? सुबोध का, सो यू कैन फाइंड दैट उसका एक्सेस कितना है? एक्सेस ऑन अलॉटमेंट, दैट इज 300 मल्टीप्लाइड बाई 6. उसका ऑलरेडी अलॉटमेंट पे एक्सेस कितना है? 1800 रुपीज. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ यू कैन सी दैट सुबोध ने 200 शेयर अलॉट हुआ. सो इन द केस ऑफ अलॉटमेंट शेयर वी कैन फाइंड द अप्लाइड शेयर. अप्लाइड कितना किया उसने? 300 शेयर. ये फॉर्मूला कैसे आया? इट इज बेस्ड ऑन द यूनिटरी मेथड, यू नो वेरी वेल. अगर कोई बंदा, हमें क्या निकाला है? अप्लाइड. अगर कोई बंदा को 1 लाख शेयर मिलता है, 1 लाख शेयर कितना डिमांड करने पे? 1,50,000. ठीक है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था, 1 लाख शेयर अलॉट होता है कितना अप्लाई करने पे? 1,50,000 अप्लाई करने पे. ठीक, तो एक शेयर के लिए क्या करना पड़ेगा? यू नो वेरी वेल, 1,50,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख. और कितने शेयर का अप्लाइड निकालना है? 200 शेयर का. तो 200 में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे. विच आर बेस्ड ऑन, जैसे बचपन में पढ़ते हैं ना, 5 एप्पल के प्राइजेस इतने हैं, तो एक, जैसे 5 एप्पल के प्राइस 20 हैं, तो एक एप्पल के प्राइस क्या होंगे? 20/5. तो 7 एप्पल के प्राइस क्या होंगे? 20/5 इंटू 7. ऐसे ही निकलता था. वैसे ही आपको यहाँ पे भी निकालना है कि सपोज कंपनी ने को शेयर होल्डर अलॉट कर रहा है 1 लाख शेयर पे. कितना शेयर? 1,50,000 अप्लाइड. यानी 1 लाख शेयर अलॉटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ 1,50,000 अप्लाइड. तो एक शेयर अलॉट होगा ऑन द बेस ऑफ 1,50,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख. और आपको कितने शेयर का अप्लाइड निकालना है? 200. तो 200 शेयर का अप्लाइड क्या हो जाएगा? 1,50,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 200. ओके, सो ये आपको बेसिकली यूनिटरी मेथड से फाइंड आउट करना है कि अप्लाइड और अलॉटेड कैसे होगा. एग्जाम में अप्लाइड भी दे सकता है, अलॉटेड भी दे सकता है. इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? इन दिस क्वेश्चन वी हैव अ गिवन इंफॉर्मेशन ऑफ अलॉटेड, सो हमें क्या निकालना पड़ेगा? अप्लाइड. यानी सुबोध को जो 200 शेयर अलॉट हुआ है, उसने अप्लाई कितना किया होगा? 300 शेयर. इसका मतलब उसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना होगा? 300 माइनस 200 इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाइड बाई 6. यानी उसका कितना एक्सेस मनी एडजस्ट होगा अलॉटमेंट पे? मनी ऑलरेडी एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट. अलॉटमेंट पे उसके पैसे कितने एडजस्ट होंगे? दैट इज 600. अब उसका एरियर निकालते हैं.
तो अलॉटमेंट पे हम उससे कितना डिमांड करेंगे, अलॉटमेंट पे उससे डिमांड करेंगे 200 मल्टीप्लाइड बाई 6, यानी उससे हम डिमांड करेंगे 1200। ठीक, बट ऑलरेडी कितना उसका पैसा एडजस्ट है 600, तो एरियर कितना बनेगा अलॉटमेंट पे, 600। यानी कंपनी ने उससे 200 शेयर पे कितना रुपए मांगेगा अलॉटमेंट पे, 1200। ऑलरेडी उसका पहले से कितना बचा हुआ है एप्लीकेशन पे 600, तो कंपनी को कितना एरियर होगा 600। यानी कि सुबोध के कंडीशन में अलॉटमेंट पे एरियर कितना होगा 600। कॉल्स पे निकाल लो, कॉल्स पे तो कोई पैसा एडजस्ट नहीं है ना, पैसा सिर्फ किस पे एडजस्ट है, ऑन अलॉटमेंट। मनी ऑलरेडी एडजस्टेड विद अलॉटमेंट, ओनली विद द अलॉटमेंट रुपीज 600। कोई पैसा कॉल्स पे एडजस्ट नहीं है, तो कॉल्स पे तो एरिया डायरेक्ट निकलेगा, दैट इज 400। तो एरिया निकल गया। सुबोध के पॉइंट ऑफ व्यू से इफ यू कैन सी दैट द एरिया ऑन अलॉटमेंट रुपीज 600 on allotment and area on cost that is rupees 400. So firstly you can note down all the working, and now we will move to the next person that is Vikram. So you can find that कि एप्लीकेशन कितने पे रिसीव होगा 1,50,000 पे, फिर जब हम अलॉटमेंट पे कितना पैसा एडजस्ट करना है 3 लाख रुपीज, यू नो वेरी वेल बाय बिकॉज नेक्सेस मिल गया हमको। फिर देर आफ्टर हम अलॉटमेंट कॉल्ड अप करेंगे, फिर अलॉटमेंट जब रिसीव करेंगे तो एरियर कितना होगा 600, और जब कॉल डिमांड करेंगे तो कॉल पे दो लोग का एरियर है, एक सुबोध का भी एरियर है और एक विक्रम का भी एरियर है, क्योंकि विक्रम का भी हम लोग डाटा पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मैंने सुबोध की वर्किंग कर दी। अब नाउ वी विल मूव टू द वर्किंग रिलेटेड टू द Vikram. So after the calculation of amount of area of Subodh, now we will move to the calculation of area amount of, yes very good, of Vikram. तो विक्रम का एरियर कैसे निकलेगा? According to the Vikram, you know very well, according to the given information of Vikram, you know very well, Vikram to whom 100 share were allotted, 100 शेयर्स अलॉटेड, यानी विक्रम को कितना शेयर अलॉट था 100 शेयर अलॉट था। ओके, उसने क्या फेल कर दिया, फेल टू पे द कॉल मनी। उसने एरियर किस पे किया है, एरियर ऑन कॉल्स, उसने सिर्फ कॉल्स पे एरियर किया। अब आप बताओ इस पूरे क्वेश्चन में, क्योंकि ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि यहां पर मैं कुछ नहीं करूंगा, मैंने सुबोध में जितना वर्किंग किया, जितना मेहनत किया, वो विक्रम में करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं करने की जरूरत है, बिकॉज ऑफ यू नो वेरी वेल, सुबोध ने एरियर अलॉटमेंट पे भी किया था, कॉस्ट पे भी किया था, एंड यू नो वेरी वेल इस कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर हैं, जितने भी शेयर होल्डर हैं, उन सबको प्रोराटा अलॉटमेंट किया गया है। यानी ऑल द शेयर होल्डर ऑफ दिस कंपनी दैट इज अ भारत टायर्स लिमिटेड whose excess application money adjusted with allotment, चाहे वो विक्रम हो, चाहे वो सुबोध हो, चाहे वो एनी अदर शेयर होल्डर हो, सबके पैसे अलॉटमेंट पे एडजस्ट हैं। किसी भी शेयर होल्डर के पैसे कॉल्स पे एडजस्ट नहीं है। ये लाइन बार बार आप रिवाइंड करके सुनना। यू नो सुबोध ने अलॉटमेंट और कॉल्स दोनों पे एरियर किया है। सुबोध हो चाहे विक्रम हो, सबके पैसे एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट है अलॉटमेंट पे, कॉल्स पे किसी का भी एक्सेस पैसा एडजस्ट नहीं है। इज दैट क्लियर? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम सुबोध का एरियर निकाल रहे थे तो हमें यह पता करना जरूरी था कि सुबोध जो है उसने एरियर किया था अलॉटमेंट पे, और उसका पैसा ऑलरेडी एडजस्ट था किसके साथ, अलॉटमेंट के साथ। सो दैट्स वाई हमें यह पता करना जरूरी था कि उसका कितना पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट है, तभी हम उसका एक्चुअल एरियर फाइंड आउट कर सकते थे। बट विक्रम में ऐसा नहीं है। विक्रम ने एरियर किससे किया है, सिर्फ कॉल्स पे। तो विक्रम हो चाहे सुबोध हो चाहे कोई भी हो, किसी का भी इस क्वेश्चन में कॉल्स पे पैसा एडजस्ट नहीं है। सो इन दिस सिचुएशन आप डायरेक्ट एरियर अमाउंट निकालोगे, दैट इज 100 माइनस 200, 100 माइनस 2 दैट इज 200। सो यहां पे आपको अप्लाइड, अलॉटेड, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट है, वो सब निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज विक्रम ने कॉल्स पे एरियर किया है, अलॉटमेंट पे एरियर नहीं किया।
अगर अलॉटमेंट पे एरियर करता तो फिर हम इसका भी अप्लाइड निकालते, इसका भी एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी निकालते और पता करते कि इसका अलॉटमेंट पे कितना पैसा एडजस्ट है। तभी हम सही एकदम करेक्ट क्या फाइंड आउट कर पाते? यस, द एरियर अमाउंट ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स। बट यू नो वेरी वेल, चाहे सुबोध हो चाहे विक्रम हो, किसी का पैसा कॉल्स पे एडजस्ट नहीं है। अगर होता तो फिर हम पता करते कितना इनका पैसा एडजस्ट है विथ अलॉटमेंट और कॉल्स। बट यू नो वेरी वेल, सुबोध के साथ ऐसा किया गया क्योंकि उसका पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट था और उसने अलॉटमेंट पे एरियर भी किया था। विक्रम का भी पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट है बट उसने एरियर किस पे किया है? कॉल्स पे। दैट्स वाई सिर्फ उसका कॉल्स का एरियर निकलेगा, वो भी डायरेक्टली विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ अप्लाइड अलॉटेड एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉट एवर एंड वॉट एवर। So this is a full working of this question. Now we will move to the journal entry of this question. So before passing the journal entry, you will take all the uh, working note with you. अपने साथ ये सारी वर्किंग अपने साथ रखिए। अब हम लोग इसके जर्नल एंट्री पे चलते हैं, ठीक है? सो यू नो वेरी वेल व्हाट इज द फर्स्ट जर्नल एंट्री। सो द फर्स्ट जर्नल एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन कितने पे मिला? दैट इज 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 6, 9 लाख। यस सर। The second entry, that is application will be transferred to the capital. So the second journal entry is share application account debit to share capital to share allotment. And you know very well application पे भी क्या है? प्रीमियम है। And you know very well सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होता है जिसके साथ भी प्रीमियम होता है। So प्रीमियम मनी कितना था? 9 लाख, जिसमें से अलॉटमेंट पे कितना पैसा एडजस्ट हुआ है? दैट इज 3 लाख। और प्रीमियम पे कितना पैसा है? शेयर एप्लीकेशन मनी कितने से क्रिएट होती है? द एक्चुअल वैल्यू। व्हाट इज एक्चुअल? दैट इज 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 4। यस गुड, दैट इज 4 लाख। शेयर कैपिटल क्रिएट कितने से होगा? 4 लाख से, बिकॉज एक्चुअल एप्लीकेशन मनी इज 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 4 और जिसमें 2 रुपए प्रीमियम का था, 1 लाख इन मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 2 लाख। तो हो गया पूरा 9 लाख। फर्स्ट एंट्री क्लियर, सेकेंड एंट्री क्लियर। एंड ये सारी एंट्री आप प्रॉपर फॉर्मेट में प्रिपेयर करोगे, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। एंट्री नंबर 3, यू नो वेरी वेल, वी कॉल द अलॉटमेंट मनी। ये हम क्वेश्चन को थोड़ा सा डाउन कर दे रहे हैं फॉर क्रिएटिंग अ स्पेस। ओके, सो द थर्ड एंट्री इज शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर allotment account debit to share capital to security premium. Yes sir, is that clear? And you know very well how many share allotted? 1 lakh. And what is the allotment money? That is 4 lakh. And what is the security premium money? That is 4 lakh. 1 lakh multiplied by 4, 1 lakh multiplied by 2 for money, the total allotment money will be 6 lakh. Okay, so 6 lakh application money हो गई। and thereafter you know very well हम क्या करेंगे? allotment receive करेंगे। और when we receive the allotment, you know very well, एक बंदा है जिसका नाम है सुबोध, उसने एरियर किया है allotment, that is 600 allotment पे एरियर है। okay, yes sir। the fourth entry, bank account debit calls in area debit to share allotment. Okay, and what is the allotment money? That is 6 lakh। और 6 लाख में ऑलरेडी पहले से कितना मिल चुका है? 3 लाख। सो 6 लाख माइनस 3 लाख, सो अलॉटमेंट क्रेडिटेड विद द 3 लाख। ये बात याद रखिएगा। अलॉटमेंट क्रेडिट कितने से होता है? टोटल अलॉटमेंट है 6 लाख जिसमें 3 लाख ऑलरेडी रिसीव्ड हो चुका है ऑन एप्लीकेशन, तो 3 लाख मिलेगा। इस 3 लाख में से भाई एरियर कितना हो गया था हमको? 600। सो वी रिसीव 2,99,400। So this entry is related to the, so first entry application received, second entry related to the application money transferred to the share capital, excess money adjusted with allotment and security premium.
Third entry, allotment due with premium, and number 4 entry, allotment received, and also there is a arrear for rupees 600, 600 रुपए arrear. अब now we will move to the yes calls. और calls पे कितना arrear होगा? 400 सुबोध का होगा, 400 रुपीज सुबोध का. विक्रम का भी हमने जस्ट निकाला था. विक्रम का कितना एरियर बनेगा? दैट इज द एरियर ऑफ विक्रम 100. उसके पास कितने शेयर थे? दैट इज 100 मल्टीप्लाइड बाय 2, 200. तो 200 प्लस 400 इक्वल्स टू 600. टोटल एरियर होगा कॉल्स पे दैट इज 600. 200 विक्रम का और 400 सुबोध का. एंट्री नंबर 5th रिलेटेड टू द शेयर calls account debit to share capital. Okay, share calls account debit to share capital. And what is the amount of share calls? That is how many share? 1 lakh multiplied by 2, that is 2 lakh. And now number 6, bank account debit calls in area debit to share capital calls. ओके, सो कितना कॉल्स में डिमांड किया गया? दैट इज 2 लाख. कॉल्स पे डिमांड किया गया 2 लाख. एंड एरियर अमाउंट यू नो वेरी वेल. सुबोध का मैंने एरियर निकाला तो कितना आया था? 400 प्लस 200 पे उसका एरियर था, और विक्रम का एरियर था 100 शेयर पे 2 रुपीज के हिसाब से 200. द टोटल एरियर विल बी 600. नाउ वी रिसीव 1,99,400. ओके, एंड आफ्टर दैट अब यहां से बात आती है कि हमने उन दोनों के शेयर को फॉरफीट कर लिया. एंड यू नो वेरी वेल, जब हम शेयर को फॉरफीट करेंगे यहां थोड़ा सा सोचने वाली बात है. एट द टाइम ऑफ द फॉरफीचर ऑफ शेयर, यू नो वेरी वेल, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सुबोध, तो सुबोध ने प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया क्योंकि अलॉटमेंट नहीं दिया. विक्रम ने अलॉटमेंट दिया है, कॉल्स नहीं दिया है. सो एंट्रीज रिलेटेड टू द फॉरफीचर ऑफ शेयर ऑफ सुबोध. सुबोध की जर्नल एंट्री अलग तरीके से होगी क्योंकि उसने अलॉटमेंट नहीं दिया. अलॉटमेंट नहीं दिया इट मींस उसने प्रीमियम नहीं दिया. सो द एंट्रीज ऑफ शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन area. Okay, now you can see that सुबोध ने allotment नहीं दिया इसलिए उसने प्रीमियम नहीं दिया. But this question is totally different from the other question. मैंने आपसे बताया, अगर आप देखो तो सुबोध ने 300 शेयर अप्लाई किया था जिसके लिए उसने 6 रुपीज दिया था, डेट इज 1800. उसको कंपनी ने कितने शेयर दिए? 200 मल्टीप्लाइड बाई 6 डेट इज 1200. तो उसका एक्सेस कितना आ रहा था? 600. ओके, 600 एक्सेस आया था. इसी पैसे को मैंने किस पे एडजस्ट किया था? अलॉटमेंट पे. अगर हम अलॉटमेंट पे कॉल देखें तो अलॉटमेंट पे 200 मल्टीप्लाइड बाई 4 800 शेयर का डिमांड था, और 200 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 400 शेयर का अप्लाई था. अगर हम अलग अलग देखें तो कंपनी ने उससे अलॉटमेंट पे कितना मांगा था? 800 रुपीज. प्रीमियम का कितना मांगा था? 400 रुपीज. प्लीज लिसन केयरफुली, ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, कॉमन सेंस वाला टॉपिक है. बिकॉज यू नो वेरी वेल सुबोध ने अलॉटमेंट नहीं दिया. अलॉटमेंट पे उसका ऑलरेडी पहले से एक्सेस एप्लीकेशन बनी था, और इन केस ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन बनी, यू नो वेरी वेल, उस पैसे को हम लोग क्या कर देते हैं? एडजस्ट कर देते हैं विद द अलॉटमेंट. तो 6 रुपीज उसके एक्सेस थी, उसको मैंने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया था. अब हम अलॉटमेंट की अगर बात करें तो यू नो वेरी वेल अलॉटमेंट पे शेयर की वैल्यू थी 4 रुपए, टोटल अलॉटमेंट 6 रुपए से था, जिसमें से 4 रुपए शेयर का था ऐसे मान लो, और 2 रुपए प्रीमियम का था. इज दैट क्लियर? सो टोटल कितना हो गया? 6 रुपीज उससे डिमांड, यानी टोटल 1200 डिमांड किया था. लेकिन यू नो वेरी वेल 600 रुपए तो कंपनी को मिल गए थे ना, तो ये 600 रुपए पहले किससे एडजस्ट होंगे? प्रीमियम से. फिर 200 रुपए किससे एडजस्ट होंगे? इससे एडजस्ट होंगे. प्लीज नोट डाउन इट. यानी कंपनी के पास जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है विच ऑलरेडी एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट, इसमें कंपनी पहले
प्रीमियम रियलाइज करेगी, प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट। तो यू कैन सी दैट क्या कंपनी को प्रीमियम मिल चुका है? हाँ सर मिल गया। कैसे? 200 मल्टीप्लाई बाई 2, 400 ही सिर्फ प्रीमियम चाहिए था, यानी अभी भी 200 बाकी है, यानी रिमेनिंग अमाउंट कितना है? दैट इज 200। यानी बाकी कितने रुपए उसके बचे हुए हैं? 200 रुपए। यानी कि बंदे ने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है, अलॉटमेंट का प्रीमियम का पैसा दे दिया है। दैट क्लियर? सो यहां पे फॉर फीचर ऑफ शेयर ऑफ सुबोध के केस में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं डेबिट होगा, बिकॉज ऑफ सुबोध ने प्रीमियम भी दे दिया है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा इस चीज को। 1800 दिया उसने, 1200 रुपीज का शेयर उसको मिला, 600 उसका एक्सेस हुआ। अब हम जब अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे हैं पैसा, तो वी कैन फाइंड दैट कि 400 रुपए प्रीमियम का बन रहा है, ठीक है, और 600 रुपए सॉरी 800 रुपीज शेयर का बन रहा है, यानी अलॉटमेंट का एक्चुअल पैसा। तो 400 तो उसका प्रीमियम का पैसा मिल ही गया है ना। अभी भी 200 रुपए बच रहे हैं, वो 200 रुपए किससे एडजस्ट होंगे? अलॉटमेंट के बाकी पैसे से बच जाएंगे। सो यहाँ प्रीमियम अमाउंट को डेबिट करने की जरूरत नहीं है। दैट क्लियर? और देयर आफ्टर इसको पहले नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। अब एंट्री क्या पास होगी? सो यू कैन सी दैट कंपनी ने टोटल उससे कितने मांगे? 200 शेयर पे उससे टोटल मांगा गया कितने रुपए का एक शेयर था? दैट इज 10 रुपीज। तो टोटल कंपनी ने डिमांड कितने किए? 2000। फॉर फ्यूचर मतलब कितना मिला? एरियर मतलब कितना नहीं मिला। तो यू कैन सी दैट एरियर कितना है? 600 ऑन अलॉटमेंट, 400 ऑन फर्स्ट कॉल। यस, द टोटल एरियर इज 1000 और कंपनी को रिसीव भी कितने हुए होंगे? 1000। 600 अलॉटमेंट कहां एडजस्ट हुआ था? किस पे एडजस्ट हुआ था? अलॉटमेंट पे एरियर था, और 400 किस पे एरियर था? फर्स्ट कॉल पे। ओके, सो प्लीज नोट डाउन दिस जर्नल एंट्री। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे की जर्नल एंट्री डिस्कस करेंगे, दैट इज अ फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर ऑफ विक्रम। So I hope today we cleared all the doubts very easily. आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।